Myself, Jaiswal sir, we are studying morphology of flowering plants. That means different form of flowering plants. Now, in any seeds, there is radicle and plumule. So, from radicle, roots come out, and from plumule, there is a stem come out. So, there are two types of organ. One is root system and other is shoot system, which is above ground and which comes out from plumule. Now, there are various parts like roots, stems, leaves, flowers, fruits. These are organ of plants. In case of root, the root which comes out from radicle is called true root, and it may have primary roots, secondary root and tertiary roots. So, tap root is a true root in which one is main root, primary root is main root, and then secondary is lateral, and then tertiary come out. Root also has root here. Here we are seeing tap root and fibrous roots. Now, other than root coming out from radicle, root may also come out from stem, leaves or any other part. Then it is called adventitious root. So, fibrous root is adventitious root in which primary root dies away, and then from lower part of stem there are a number of root slits comes out, and it is fibrous root. Fibrous root is adventitious root because it is not coming out from radicle. So, primary root dies and there are a number of rootlets. In tiny plants which are half meter or shorter, fibrous root is there, and large mammoth plants, there are always tap root is there. However, in some case here we are seeing these are the exception like carrot, radish, lettuce. There is again root is tap root. Tap root is a true root which is coming out from radicle. It is modified for storage. So, root may be modified for different purpose, for breathing purpose, for storage purpose, for other purposes. So, some roots are modified like in banyan tree, it is modified for support. So, that is prop root. Prop का मतलब है support. जैसे कोई बूढ़ा आदमी लाठी लेके चलता है तो उसकी prop है, तो prop root भी हो सकता है. Here it is in case adventitious root. In case of onion, it is adventitious root because it is coming out from stem. Root has various parts. One is root cap. Under root cap, there are meristematic tissue which elongate the plant. And now here root hair is seen. So, tiny root hair, microscopic, one cell size and cannot be seen easily. These are root hair. So, which help in diffusion of air and osmosis. Here we are seeing roots coming out from lower part of stem. Some stem root is coming, such is adventitious root. In strawberry it occurs. These all are roots modified for storage, and different forms of tap roots are there. Here it is prop root in banyan tree because it is for support coming out from stem. So, it may be root may be modified for different purpose, for breathing purpose like rhizophora, it is for breathing purpose, and here root is adventitious. Here from lower nodes in sugar cane roots are coming out which is a part of shoot. Shoot से आ रहा है, ये रेडिकल से नहीं आ रहा है लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसलिए it is adventitious root, it is not a true root. तो ये prop root की तरह हो गई जो सपोर्ट के लिए. हियर राइजोफोरा में आप देखिए कि जो मार्शी स्वैम्पी एरिया होते हैं वहाँ पर रूट्स को एयर नहीं मिल पाती तो वो ऊपर आ जाती है, तो उसमें राइजोफोरा में ऐसा होता है. राइजोफोर्स होते हैं. हियर शतावरी और एस्पेरेगस एंड स्वीट पोटैटो दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, एंड स्वीट पोटैटो के केस में एडवेंटिशियस रूट है जो फाइब्रस रूट है, दैट कैन बी here in fasciculated roots it is sweet potato which is adventitious root. Here again these are for storage, that is beetroot and carrot is for storage. Roots always has hair. Here you can see there are a number of hairs coming out.
So these are secondary roots. Now modification of stem. Stems may be modified for either photosynthesis, for protection, that is thorn, and for some other purposes like tendril support के लिए. So here we are seeing there are many types of modifications of stem. Like in कॉम अरबी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसमें भी स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ स्टोरेज में तो उसमें डिफरेंट नोड्स एंड इंटर नोड्स मिलेंगे, जबकि रूट में ऐसा नहीं है. तो रूट के केस में नोड्स एंड इंटर नोड्स नहीं मिलते हैं. तो अरबी, पोटैटो, जिंजर, these are modification of stems. Here we are seeing stem became paddy, that is phylloclade, and spiny leaves are coming out from it, that is for lesser transpiration. So phylloclade, the stem itself, is for storage and for photosynthesis is incorporated. So it is modification of stem for photosynthesis. It is ये चपटा हो जाता है. So this is phylloclade, from spiny leaves is coming out. Flower is also coming out from stem only. Here again we are seeing and confirming. So it may be having different nodes and internodes. Nodes are the region from where leaves are coming out. So these other things which are coming out, it is node. Flower जहाँ से आता है और जो जहाँ से कुछ भी नहीं निकलता उसको internode कहते हैं. These are various stems modified for photosynthesis and storage. These are all phylloclade, that is cactus tree. So now we are studying modification of stem. Here again it is phylloclade. In some case it is spongy and round, and in some case it is elongated also. So in cactus tree we are seeing such types of modification in various forms and various shapes. From one stem other stem is coming out, so again it is at node. So that is phylloclade, one modification for storage. Now cladode in which there is no true leaf, it is only stem which looks like leaf. So it is very thick, looks like leaf, but it is the stem which is modified as leaf. And phylloclade पढ़ लिया, cladode पढ़ लिया. Now third is potato. So the lower part of stem which is becomes swollen, and it is potato. Here you can see there is no root here. It confirms that it is a modification of stem only. So these are the stems which are modified as tuber, that is potato. Here you can see. But in case of sweet potato there may be various hairs. तो शकरकंदी में बहुत सारे हेयर होते हैं, इससे पता चलता है स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, जबकि पोटैटो कितना चिकना है, इस पे कोई रूट हेयर नहीं है, तो ये स्टेम का लोअर पार्ट है जो इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है. सो इट इज सोलेंट पार्ट ऑफ लोअर सोलेंट पार्ट ऑफ स्टेम विच कम आउट, गोज इनसाइड ग्राउंड एंड अल्टीमेटली गेट सोलेंट. इट इज कमिंग आउट फ्रॉम प्लम्यूल. Ginger, there are various nodes and internodes found. From nodes there are leaves coming out. So ginger is again a kind of stem modification. Ginger is a rhizome which continuously horizontally growing underground, and from its node roots are coming out and leaves are coming out. Rhizome is such a structure which is going laterally horizontally inside ground, और उसी में से पत्तियां निकलती हैं और दूसरे पार्ट्स निकलते हैं. तो जिंजर भी एक स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है इन विच स्टेम इज ग्रोइंग एंड गेट सॉलन इनसाइड ग्राउंड. कुछ पार्ट स्टेम का ग्राउंड के अंदर भी रहता है, जिंजर के केस में भी ऐसा है, टर्मरिक हल्दी के केस में भी ऐसा ही होता है. Here you can see in case of ginger there are nodes and internodes are seen. From nodes there are roots are coming out and also there are leaves are coming out. This confirms that it is a modification. Here it is strawberry. So in case of strawberry, stem horizontally grows and from nodes roots are coming out, adventitious roots are coming out. जो stem से निकले, रेडिकल से ना निकले तो वो adventitious root है और इसी में से फ्रूट निकलता है. ये
इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर इसको बीच में से काट दिया जाए. सो रूट्स आर पैरेलली एंड अबव ग्राउंड सरफेस एंड दे आर, ये शूट्स आर या स्टेम्स आर ग्रोइंग अबव ग्राउंड. इसमें से रूट्स निकलती जाएंगी और इस तरीके से स्ट्रॉबेरी आता जाएगा. तो स्ट्रॉबेरी भी एक रनर है. रनर का मतलब है जो ग्राउंड के ऊपर ऊपर बढ़े, और उसमें से जहाँ भी लीव्स निकलेंगी तो स्ट्रॉबेरी भी निकलती चली जाएगी. तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि रनर के तौर पर भी हो सकता है, राइजोम के तौर पर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है. सो वी आर सीइंग स्टोरेज के तौर पर इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है. जैसे ट्यूबर है तो ट्यूबर हो सकता है. नाउ इट इज स्टोलॉन विच इज मूविंग above ground, and from its nodes roots are coming out and shoots are coming out at nodes. You can see it is stolon or runner. तो ये above ground है तो runner या stolon कहेंगे, और underground है तो rhizome कहेंगे. It is strawberry which is runner or stolon. Stems are modified for various purpose. Now, here offset in pistia in which roots are coming out and leaf, it is found in ground. So it is found in water. So pistia में आप ये देख सकते हैं कि ये पानी में ऊपर ऊपर चलता है और नीचे से रूट्स निकलते हैं और ऊपर से लीव्स निकलती हैं, बट ये वाटर में पाया जाता है. सो पिस्टिया इज अगेन ए मॉडिफिकेशन जिसमें रूट्स इसके नोड से निकलती है. नाउ स्टेम मॉडिफिकेशन इज थॉर्न. तो स्टेम में से अगर जो उसकी एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड क्या होती है, जो नोड पर जहाँ से लीफ निकलती है वहीं पर कॉर्नर में छोटी सी एक्सिलरी बड है, वही एक्सिलरी बड अगर थॉर्न में बदल जाए तो स्टेम मॉडिफिकेशन है. सो कभी अगर स्टेम से ब्रांचेज ना निकलें और वो टर्मिनेट करके डाई ऑफ करके एक थॉर्न बन जाए, देन इट इज स्टेम मॉडिफिकेशन. हियर यू कैन से एक्सिल, एंड एक्सिल पर एक्सिल बड होती है. नाउ वी आर सीइंग पार्ट ऑफ लीफ. सो लीफ कंटेन्स पिटियोल एंड मिड रिब. इसके अलावा देयर आर स्टिप्यूल. स्टिपुलेट मीन्स विच कनेक्ट्स लीफ टू द स्टेम. देयर आर स्टिपुलेट. some are having stipulate and some are not having stipulate. In some case leaf is directly connected to stem, then it is called sessile and no petiole is there. Some are embracing stem, then it is clasping base. So here you can see small leaflet, that is stipulate leaf and other is embracing. Here again sessile means no petiole and X stipulate no stipule. So various types of leaves are seen. Venation. In case if from mid rib there are veins are coming out, जिसमें से जाइलम फ्लोएम जाता है, then it is reticulate venation. और मिड रिब के along veins चलें तो उसे कहेंगे पैरेलल वेनेशन. अगर जो लीफ का मार्जिनल है वो अगर मिड रिब को टच ना करें तब ये ट्रू लीव है, और अगर टच कर जाएगा तब ये लीफलेट कहलाएगी. यहाँ नहीं टच कर रहा है, सो अगर टच कर जाएगा, अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा, तब कंपाउंड लीव हो जाएगी. अभी ये ट्रू लीव है. यहाँ पर इसने मिड रिब को टच कर लिया है तो अब ये लीफलेट कहलाएगी, और इस केस में यहाँ हम देख रहे हैं दीज आर कंपाउंड लीव. हियर देयर आर various kinds of leaves are seen. Now these all are examples. Simple leaf में सिंगल लीव है और उसके पीटियोल पर एक्सिल पर एक एक्सिलरी बड होता है, जबकि कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स हैं उनमें हर लीफ के एंड पे एक्सिलरी बड नहीं होता है. इससे पता चलता है कि लीफ ने टच कर लिया है और वो ट्रू लीफ नहीं है, लीफलेट है. Here we are seeing the leaf pattern. ये अल्टरनेट भी हो सकता है, अपोजिट हो सकता है. जैसे यहाँ पर आप देखिए ये अल्टरनेट है, पीछे के केस में वो अपोजिट था. तो there are various types of phyllotaxy. When we study the arrangement of leaf, then it is called phyllotaxy. So here we are seeing compound leaf. इसमें हर एक लीफलेट के टर्मिनल पर एक्सिलरी बड नहीं है, बिल्कुल लास्ट में ब्रांच में होगा. सो ये बीच की जो बड़ी रिब है वही मिड रिब है, और ये लीफलेट है तो ये कंपाउंड लीव्स है. कंपाउंड लीफ में भी कई तरीके की लीफ होती हैं, पामेटली कंपाउंड एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ. अगर हाथ की तरह है, सब एक जगह जुड़े हुए हैं, पाम की तरह है तो पामेटली कंपाउंड. जैसे कि अब ये वर्ड लीफ कही गई है क्योंकि हर लीफ के एंड में एक एक्सिलरी बड है, तो ये सिंपल लीफ है लेकिन वर्ड है. एक्सिलरी बड नहीं होगी तो फिर उसको हम दूसरा नाम देंगे पामेटली कंपाउंड.
वो हम आगे देखेंगे। उसमें मिड रिप टर्मिनेट कर जाती है, जैसे कि यहाँ सिंपल लीफ दिखाई गई है। अब एक्सिलरी बड इज क्लियरली सीन। पामेटली कंपाउंड में ये हाथ की तरह 5 पत्तियां फैली हुई हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं, और पिनेटली कंपाउंड में मिड रिप से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं। तो पामेटली कंपाउंड में सेकेंडरी पामेटली भी हो सकती है, टर्शरी भी हो सकती है, इट इज ऑल सीन। तो दिस इज स्पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ हर लीफ के एंड पे एक्सिलरी बड नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी मिड रिब है, और मिड रिब में बहुत सारे फिर सेकेंडरी जो वेन्स कम आउट हैं, वेन्स पे पत्तियां निकली हुई हैं। तो देयर आर कंपाउंड लीव्स जो कि पिनेटली कंपाउंड है एंड पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड लास्ट वाली है, जिसमें पिटियोल के एंड में सारे लीफलेट हैं और उसमें मिड रिब नहीं उगती। Here we are seeing that is leaf blades, so it is 3 veins from base coming out. तो 3 veins एक साथ कम आउट होती है, ऐसा भी हो सकता है, और 1 मेन वेन होती है तो उसे मिड रिप कहेंगे। 3 veins कमिंग आउट होती है तो उसे दूसरा टाइप कहेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन प्लांट्स, वी आर सीइंग दैट इट इज फाइलोटैक्सी। कैसे ये अरेंज होती हैं, दैट वी आर स्टडिंग हियर। नाउ हियर देयर आर लीव्स, जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि लीफ भी मॉडिफाई हो सकती हैं, लीफ थॉर्न बन सकती हैं, टेंड्रिल हो सकती हैं, या लीफ यहाँ पर एक लीफ के पोजीशन से ही एक टेंड्रिल निकल आया है, सपोर्ट निकल आया है। तो अगर एक्सिलरी बड से सपोर्ट आ जाए तो उसको फिर स्टेम का मॉडिफिकेशन कहेंगे, और लीफ ही अगर सपोर्ट बन जाए तो उसको लीफ मॉडिफिकेशन कहेंगे। इट इज़ पिचर, घड़ा होता है पिचर, तो पिचर लीव्स। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पिचर लीव्स होती हैं घड़े के आकार की, और इनके अंदर सैप होता है जो बहुत स्टिकी होता है, और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रैप प्रे ट्रैप प्लांट भी कहे जाते हैं। तो लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन के तौर पर हो सकता है या थॉर्न के तौर पर हो सकता है। लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल की तरह भी हो सकता है। लीफ का मॉडिफिकेशन ब्रायोफाइलम स्टोरेज के लिए भी हो सकता है। हियर वी आर सीइंग दैट देयर आर वेरियस लीफ मॉडिफिकेशंस आर प्रेजेंट। लीफ का मॉडिफिकेशन यहाँ स्टोरेज के तौर पर है। जो येलो स्मॉल पोर्शन है वही स्टेम है, बाकी ऊपर जितनी भी है बल्ब्स वो लीफ हैं जो फोल्डेड हैं और स्टोरेज के तौर पर है। तो लीफ इज मॉडिफाइड इन गार्लिक एंड ओनियन एज स्टोरेज। तो ये बल्ब के तौर पर है। ओनियन एंड गार्लिक, लहसुन और प्याज में इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है। यू कैन सी, तो लीफ बल्ब्स की तरह भी हो सकता है, थॉर्न की तरह हो सकता है, टेंड्रिल की तरीके हो सकता है, स्टोरेज के तरीके से हो सकता है। देयर आर वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन। हियर वी आर seeing about bulbs, which is a leaf. Onion is a leaf. Stem is only terminated in yellow portion, which is not even not eaten. And the upper part of leaf, जो meristematic tissue है, which is coming out, हरी प्याज जिसको कहते हैं. So here it is underground. Onion is underground, and above it is the leaves coming out. The same onion is sown. Though it looks to somebody that it is root, but it is not root. It is bulb, is a modification of leaf. So various kinds of leaf modification we are seeing. Leaf अगर सपोर्ट के लिए चली जाती है, जैसे जो गॉर्ड हैं, कोई भी है, बॉटल गार्ड है, तरोई, लौकी, इन सब में, तो ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन। और अगर एक्सिलरी बड ही कहीं पर सपोर्ट के लिए जाती है तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो टेंड्रिल किसी भी तरीके की हो सकती है। आपको पता करना है कि वो कहाँ से निकली है, एक्सिलरी बड से निकली है या जो लीफ जहाँ से निकलती है उस पोर्शन से निकली है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि लीफ का मॉडिफिकेशन है या कैसे। हियर अरेंजमेंट दैट इज फाइलोटैक्सी। सो स्पाइरली अरेंज लीव भी हो सकती हैं, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है कि लीव्स आर लाइक स्पाइरल। तो इट इज स्पाइरली अरेंज लीव भी हो सकती है। जैसे हमने पामेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड देखा, वैसे स्पाइरली अरेंज भी हो सकती है। सिंपल लीव हो सकती है, कंपाउंड लीव हो सकती है। बाकी हियर इट इज इट कैन बी सीन दैट इफ देयर आर एक्सिलरी बड प्रेजेंट, देन एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी तो स्वर्ड मानी जाएगी, और एक्सिलरी बड नहीं प्रेजेंट होगी तो पामेटली कंपाउंड लीव मानी जाएगी। यहाँ पर स्पाइरली अरेंज लीव को दिखाया गया है। नाउ सरफेस ऑफ लेमिना स्मूथ भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा खुरदुरा भी हो सकता है, या फिर उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के लेमिना भी पाए जाते हैं। उसकी सरफेस कैसी है।
यहाँ वीनेशन दिखाया गया है रेटिकुलेट यानी जालदार, और पैरेलल का मतलब है मिड रीड के अलॉन्ग अगर वेन्स जाएंगे तो पैरेलल वीनेशन कहा जाएगा। बनाना में यहाँ पैरेलल वीनेशन पाया जाता है। दो वीनेशन आर लेटरल बट इट इज पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल। मिड रिब बीच में जा रही है और वेन्स लेटरल है, उसके परपेंडिकुलर है, फिर भी ये पैरेलल वीनेशन है, तो क्योंकि इनमें जालदार नहीं है। रेटिक्यूल मीन्स ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, इन पीपल it is web like structure, in many of the large plant it is web like structure, here it is parallel venation. We can clearly by seeing leaf can found that it is reticulate or parallel venation. In case of banana tree it is parallel venation, in case of mango it is reticulate venation. So large plants में reticulate venation होता है। large plants dicot plants होते हैं, जितने भी वुडी प्लांट्स हैं, और उन सब में ये रेटिकुलेट विनेशन होता है। हियर वी आर सीइंग दैट इज पामेटली रेटिकुलेट विनेशन, एक पॉइंट से बहुत सारे अलग अलग वेन्स आ रहे हैं, फिर उनमें रेटिकुलेट बन रहा है, तो पामेटली रेटिकुलेट। लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लीफ का एक ये भी रोल है कि उसके नॉचेस से अलग अलग प्लांट निकलते हैं, ऐसा ब्रायोफाइलम में होता है। इट इज ए काइंड ऑफ पिचर प्लांट दैट इज यूट्रिकुलेरिया। सो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उससे अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। सो दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक, एंड देयर आर सम ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इन विच दे ईट इंसेक्ट। तो एक ट्यूब है, उसके अंदर हॉलो है, उसमें सैप भरा हुआ स्टिकी, तो ड्रोसोला में ऐसा ये देखिए आप, तो ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है बट आगे से ओपन है, तो उसमें अगर चला जाएगा कोई प्लांट और बहुत इसमें एरोमा होती है इसके जो नेक्टर में, तो इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो अंदर ही अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो ब्लैडर की तरह है। तो ऐसा जो होता है, कई बार ये वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसे कि कोई चीज़ डिब्बा बंद होता हो तो वो पूरी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप, बगल में पिक्चर है, तो दो अलग अलग तरीके के इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसे इंसेक्ट आएगा बंद हो जाएगा और फिर उसे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। सो इट इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। इट इज अ वीनस फ्लाई, इट इज नॉट ए पिचर प्लांट, यहाँ पिचर प्लांट लिखा है बट इट इज ए वीनस फ्लाई, पिचर घड़े की तरह होता है। दिस ऑल इज फ्लाई ट्रैप जो बाई लोब्ड होते हैं। अगेन दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट अगर है तो घड़े की तरह है, बाई लोब्ड है जिसमें कांटे हैं, तो ये पिचर प्लांट है। तो यहाँ पर आप देखें इट इज पिचर प्लांट। नाउ इफ सॉइल इज डेफिशिएंट फ्रॉम नाइट्रोजन और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, देन इन सच केस such insectivorous plants either Venus flytrap or it may be a dangerous pitcher plant, like here it has been shown in some fictitious story that it is also man eating, or otherwise in Amazon forest there may be such plants, mammoth plants present which are man eating. So here it has been shown that it is a kind of pitcher plant, or in other case Venus flytrap, like sap. Here you can say sap which is sticky, in which it get, here again there is a sticky substance inside of these folded leaf pets which is present, in which insect get trapped. It has eaten a pigeon itself. How dangerous pitcher plant and larger is it? So you can just appreciate, like salamander, wall lizard, all can be eaten by these insectivorous plants. Here it is again a modification like insectivorous plants. We have seen as tendril, we have seen as insectivorous. Here sap is present, you can see it is fully filled with sap. We have seen that leaf as storage, and we have seen जैसे कि storage में हम प्याज है, लहसुन है, देख सकते हैं, which is bulb. So leaf as a bulb, leaf as a insectivorous, leaf as a tendril, we all have seen. Or leaf may be spiny, that is for protection, it is present. So there are 4 kinds of modification of leaves that we have seen. Various types of insectivorous plants have been shown which are present in nature. Now as soon as the insect goes, the pitcher plant closes its cap. उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, वो उसे तुरंत बंद कर लेता है, and that insect cannot come out. And in case of Venus flytrap,
इट क्लोजेज इट्स पाम, अपनी दोनों लीफलेट को फोल्ड कर देगा एंड द fly or insect get trapped in it. That's why the name is as per its etymology Venus fly trap. And it, see, so we have seen how the leaves are arranged, that is phyllotaxy. Then we have seen how the modification of leaf is taking place, that also we have seen. Drosera is tube like. We have also seen the venation in plants and we have seen simple leaf, compound leaf. Simple leaf वो होती है जिसके पिट्यूल के पास एक एक्सिलरी बड होती है। स्टिप्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, छोटी छोटी लीफ, अदरवाइज नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो और कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बड नहीं होती, ये पहचान है। लीफ के अलग अलग कलर भी हैं। हियर वी आर सीइंग दैट लीव्स आर ऑफ वेरियस कलर्स. It is due to various colors of plastids present in it. So these are the chromoplasts which determine the color of leaf. It may be rhodoplast, then it will be red in color. So there are other colors of plastids like chloroplast, then green in color. If xanthophyll is there, then it is of yellow color. So chromoplasts are of various colors which determine the color of leaf. So here we are seeing the colors and even their combination also gives some colors like chloroplast, xanthophylls, rhodoplast. If they are in various amount, then also the leaf is of varying color. It may be variegated, that at some part it is yellow, some part it is green. Such case also occurs. However, we inspect in gardens or in surrounding that leaves are of various colors. It is variegated leaf. So such are ornamental plants in which variegated leaves are found. If rhodoplast is present, then red color is prominent in it. So this is also seen, and such leaves are decorative and such plants are ornamental. लीव्स में भी अरेंज इन वेरियस पैटर्न. ये अल्टरनेट भी हो सकती हैं, अपोजिट हो सकती हैं, जिसमें दो पिट्यूल एक दूसरे के अपोजिट हों, या अल्टरनेट भी हो सकती हैं, या टर्मिनल पर हो सकती हैं. तो टर्मिनल पर अगर हो जाएंगी तो ऐसे केस में भी उनको क्या कह सकते हैं कि अगर टर्मिनल पर चली गई तो पामेटली हो जाएंगी, और हर नोड पर चारों तरफ हैं तो वर्ल्ड कहलाएंगी. तो इस तरीके से लीफ में अलग अलग तरीके की फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके का कलर देखने को मिलता है. लीफ का शेप अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो वो भी हमने देखा. जब शेप हम देखते हैं तो फिर हम पहुंच जाते हैं सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ में भी हमने देखा कि पामेटली कंपाउंड हो सकता है, पिनेटली कंपाउंड हो सकता है. फिर पिनेटली कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पिनेटली कंपाउंड हो सकता है, ये भी हमने देखा. लीफ में हमने उसके वीनेशंस देख लिए कि रेटिकुलेट वीनेशन जो बड़े बड़े पेड़ों में होता है, जो डाइकॉट्स हैं वो बड़े बड़े पेड़ हैं, और जो छोटे छोटे पौधे हैं जो शर्ब्स हैं वो ज़्यादातर मोनोकॉट हैं. तो मोनोकॉट में हमने देखा कि चाहे गेहूं का पौधा हो, इन सब में पैरेलल वीनेशन होता है. बनाना में भी पैरेलल वीनेशन दिखाई देता है. तो दैट वी हैव सीन. वीनेशन देख लिया है, फाइलोटैक्सी देख ली है, लीफ का स्टेम पर अरेंजमेंट हमने देख लिया है, इसको फाइलोटैक्सी कहा जा सकता है. जैसे कि अल्टरनेट अरेंजमेंट, अपोजिट अरेंजमेंट, वर्ल्ड अरेंजमेंट, ये सब फाइलोटैक्सी में आते हैं. फिर अगर मान लीजिए कि जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है तो उसमें मिड रिब को रैशिस कहा जाता है. फिर उसे मिड रिब नहीं कहा जाता है क्योंकि उसमें से फिर और भी लेटरली निकलने लगती है, उनमें लीफलेट्स होती हैं, तो फिर वो मिड रिब ना कह के रैशिस कही जाती है. यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ के कलर देख रहे हैं. अभी हम रूट के मॉडिफिकेशन देख चुके हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन देख चुके हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन देख चुके हैं. दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट. अभी हमको आगे फ्लावर के मॉडिफिकेशन देखना है और इसके बाद फ्रूट के मॉडिफिकेशन देखना है. तो इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स है कि फ्लावर का स्टेम में कैसा अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस.
here we are seeing that this arrangement or inflorescence is the arrangement of flower around stem is of two types. One is racemose, other is cymose. So racemose, that means the stem is mainly growing, the main stem is growing upward. So here B is racemose type. One is simple flower, that is at terminal flower comes, other is racemose, B is racemose. The flower is coming laterally or sidewise, however the main stem, main shoots grows, such is racemose. But in case of cymose, that the main terminal, main branch ceases to grow and the flower comes on it, and later on downward other flowers comes out. Now flower may also be actinomorphic if it is a radial symmetry, it is zygomorphic bilateral symmetry, and it also can be asymmetry if no symmetry is there. Here it is actinomorphic radial symmetry. Zygo means two. So zygomorphic means that is single axis and it can be divided into two halves. Here we are also seeing that inflorescence, here it is inflorescence is cymose type. Cymose means main stem ceases to grow and there are alternately, that is monochasial स्कॉर्पॉइड, स्कॉर्पियन की तरह है. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके का साइमोस का एक टाइप दिखाया गया है कि मेन एक्सिस के एंड में फ्लावर आ गया, मेन एक्सिस के एंड में फ्लावर आ गया, दैट मीन्स इट इज साइमोस. और अगर मेन एक्सिस है जो स्टेम है उसके एंड में फ्लावर नहीं है तो वो रेसिमोस है, वो बढ़ता ही चला जाएगा. ये सारे साइमोस के हैं क्योंकि मेन एक्सिस के एंड में फ्लावर आ गया है. बाकी उसके और दूसरे पैटर्न है, पॉलीचेजल है, चेजियल है, मोनोचेजियल है. तो ऐसे अलग अलग तरीके के हम देख सकते हैं जिनको आपको एग्जांपल से दिखाया गया है. और रेसिमोज में मेन एक्सिस आ गया, ये रेसिमोज है. देखिए आगे इसमें मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं है तो रेसिमोज है. इसमें नए फ्लावर ऊपर रहते हैं और ओल्ड फ्लावर नीचे रहते हैं, जबकि साइमोज में ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर है, पहले सबसे ऊपर फ्लावर आएगा मेन एक्सिस में, फिर नीचे की ओर बढ़ेगा. तो इस तरीके से इनमें पैटर्न होता है. Now there is that is spikelet types of flowers are coming out. If there is no pedicel is present in flowers. Pedicel means जैसे petiole होता है वैसे फ्लावर में pedicel होता है, then उसको कहेंगे sessile flower. वो सीधा उसमें जुड़ा है, sessile का मतलब non movable, हिल डुल नहीं सकता. There are also corymb like structure, तो वो भी है. umbrella type भी हो सकता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल अम्बल है, अम्ब्रेला टाइप है तो अम्बल कहेंगे. देयर आर वेरियस मॉडिफिकेशन विच हैज बीन सीन. कॉरिम यू कैन सी दैट मैनी फ्लावर्स आर देयर बट सेंटर में छोटा होगा और किनारे किनारे बड़ा होगा, दैट इज सीन. सो इट इज अम्बेल, अम्ब्रेला लाइक. ए बंच ऑफ फ्लावर्स एट डिफरेंट. हियर देखिए सेंटर में छोटा है और किनारे पे बड़ा है, तो मदर फ्लावर साइड में है और बीच में डॉटर फ्लावर है जो न्यू यंग फ्लावर है. सो इट इज कॉरिम लाइक, हाउएवर दे आर एट सेम लेवल. देयर आर आल्सो पैनिकल. इट इज a loose branching cluster, that is panicle. In case of racemose it continue to grow and flower continue to come. older flower नीचे हैं और younger flower ऊपर है. ये A शेप में बनता है, नीचे बड़ा और ऊपर छोटा. सो इस तरीके से होता है. सो एक्रो टाइप फ्लोरेसेंस. और जबकि रेसिमोस बेसल टाइप है क्योंकि उसमें नीचे बड़े, नीचे छोटे होते हैं और ऊपर मदर फ्लावर होते हैं. दीज आर ऑल लिली है, लिली में भी रेसिमोस है, कितना ब्यूटीफुल है. तो बढ़ता चला जाएगा और लेटरली फ्लावर इसमें ग्रो करते चले जाएंगे. सो इट इज रेसिमोस, इट इज ऑल रेसिमोस. मेन एक्सिस आप देख रहे हैं और फिर बाकी ऐसा हो रहा है. अगेन रेसिमोस, मेन एक्सिस ऊपर बढ़ती चली जा रही है और बाकी फ्लावर्स नीचे आते जा रहे हैं. और शूट की टिप में कभी भी फ्लावर नहीं आएगा रेसिमोस में. और इसमें नीचे मदर फ्लावर हैं, ओल्डर फ्लावर हैं और ऊपर छोटे फ्लावर हैं रेसिमोस में, और ए शेप में रहेगा ये. ऑल आर रेसिमोस. सो वी आर सीइंग इनफ्लोरेसेंस कि फ्लावर कैसे अरेंज रहते हैं किसी स्टेम में. तो ये रेसिमोस हो सकता है या साइमोस हो सकता है. तो रेसिमोस जो रेस लगा रहा है तो रेसिमोस है और अदर इज साइमोस. नाउ स्पाइरल फ्लावर अरेंजमेंट भी हो सकता है, एक तीसरे टाइप का भी है, दैट वी आर सीइंग कि अगर स्टेम टर्न करना शुरू कर दे और एक ही साइड में फ्लावर निकलें, देन इट इज लाइक दिस
कॉरिम्ब फ्लावर अरेंजमेंट भी हो सकता है, जिसमें बड़े फ्लावर किनारे होंगे और बीच में छोटे छोटे फ्लावर होंगे। अम्बेल भी हो सकता है। दीज आर इनफ्लोरेसेंस। सो इट इज ए काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बीच में यंगर फ्लावर और किनारे बड़े बड़े फ्लावर। इट इज लाइक दिस। अम्बेल में धीरे धीरे एक अम्ब्रेला टाइप बनाते हैं, एक सिंगल हॉरिजेंटल एक्सिस पे नहीं होते हैं, ये सिंगल हॉरिजेंटल एक्सिस है। अगर अम्ब्रेला लाइक हो कि जो लास्ट फ्लावर्स हैं वो झुके हुए हों, नीचे हों, तो ऐसा होता है। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, फ्लावर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। अगर ओवरी सुपीरियर है, बाकी चीजें हाइपो हैं यानी नीचे हैं। हाइपो का मतलब नीचे हैं, पेटल और ये सब नीचे हैं तो हाइपोगाइनस। अगर सब एक ही लेवल पर हैं तो उसकी पेरीफेरी पर हैं तो उसे पेरीगाइनस कहेंगे। और अगर ओवरी नीचे हैं, बाकी चीजें ऊपर हैं, बाकी एपी हैं, गाइनो का मतलब होता है ओवरी, then it is epigynous. So based on a position of other things with respect to ovary, that is hypogynous, perigynous and epigynous. Here we are seeing different parts of flower. All flower parts are attached to thalamus, that is also known as receptacle. That is sepal जो green part है, petal, फिर इसके अलावा androecium, that is stamen, and after that there is a central, that is calyx. So calyx और carpel भी कह सकते हैं. So they all are arranged to swollen base, that is called thalamus. Thalamus is present on top of pedicel. जैसे petiole leaf में होता है वैसे यहाँ pedicel है और pedicel के ऊपर thalamus है, उसमें सारे floral parts अरेंज्ड है क्रम से, जिसमें सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और उसके बाद अंदर में कार्पेल प्रेजेंट होता है। हियर इट इज सीन हाइपोगाइनस, दूसरे पार्ट नीचे हो और ओवरी ऊपर हो तो उसे हाइपोगाइनस कहते हैं। दैट इज एपिगाइनस, दूसरे पार्ट ऊपर है। एपी दूसरे पार्ट्स के संदर्भ में लिया गया है, दूसरे पार्ट्स ऊपर हैं और गाइनो नीचे है, तो इट इज एपिगाइनस ओवरी। So on position of ovary, it is epigynous, hypogynous, perigynous. There are three types of floral arrangements are there on the basis of position of ovary. Here it is seen that ovary is lower, so it can be seen that it is epigynous. दूसरे part ऊपर है. Here again we can see that ovary is basal and other parts are above it. So दूसरे पार्ट अबव हैं तो ये एपिगाइनस कही जाएगी। इट इज जस्ट इंसर्टेड इनसाइड रिसेप्टिकल। अगेन इट इज एपिगाइनस इन गुआवा। अदर पार्ट्स अबव। देयर आर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स लाइक वी हैव सीन दैट देयर आर स्टिप्यूल प्रेजेंट एट एंड ऑफ पिटियोल। जो स्टेम से जुड़ा था वहां पर स्टिप्यूल थे, यहाँ पर ब्रैक्ट कहा जाएगा। अगर पेडिसेल के एंड में दो लीफलेट हैं तो उन्हें ब्रैक्ट कहा जाएगा। लीफ के एंड में होते थे तो उन्हें हम स्टेप्यूल कहते थे, और फ्लावर के पेडिसेल के एंड में अगर दो छोटी छोटी पत्तियां हैं तो ब्रैक्ट कहा जाएगा। तो कुछ फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं और कुछ ई ब्रैक्टिएट होते हैं। जिनमें छोटी दो पत्तियां पाई जाती हैं वो ब्रैक्टिएट हैं, जिनमें नहीं पाई जाती वो ई ब्रैक्टिएट होते हैं। सो देयर आर द नेम ऑफ फ्लावर हैज बीन शोन। नाउ देयर आर आल्सो, इफ इट इज कट transversely, then we will see the floral arrangement, how the floral arrangement is there. Even different parts like stamen has filament and anther. So anther is bilobed and each lobe has two tubules, so it is tetratubule. तो हम यहाँ देख सकते हैं जिसमें कि pollen sac में pollen grains भरा होता है। तो anther में जो नीचे का पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल है, जो कहीं अटैच है, और जो ऊपर है वो डिस्टल है। तो जो फिलामेंट का डिस्टल पोर्शन है वो एंथर से अटैच है और नीचे वाला पोर्शन कहीं जाकर रिसेप्टिकल से अटैच होगा। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इट इज कॉल्ड एंड्राइशियम, एंड ग्रुप ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड गाइनोशियम। दैट वी हैव टू understand. Now ovary
दैट इज कैलिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो स्टिकी हो स्टिग्मा है, जो स्टाइलिश हो नेक हो वो स्टाइल है, और ओवरी स्वॉलन पार्ट है। पॉलीएडल्फस एंड्राइशियम, जिसमें अलग अलग स्टेमन अलग अलग हो उसे पॉलीएडल्फस कहते हैं, कोई किसी से जुड़ा ना हो। एडल्फस एक मेल मेंबर के लिए एटिमोलॉजी है, तो पॉलीएडल्फस एंड्राइशियम। एंडर मीन्स भी मेल होता है। हियर वी आर सीइंग द फ्लोरल अरेंजमेंट on thalamus. So floral arrangement on thalamus is called estivation. So in case of estivation, if different petals are separate and do not touch each other, velvet type कि वो दूर दूर रहना चाहते हैं तो उसको कहेंगे कि velvet। अगर वो एक दूसरे पर ओवरलैप हैं एक डिफरेंट पैटर्न में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो ट्विस्टेड कहा जाएगा। और कभी कभी वैक्सिलरी भी होते हैं कि एक बड़ा पेटल है फिर दो छोटे हैं फिर दो जुड़े हुए हैं, तो ये वेलवेट है। सब अलग अलग रहना चाहते हैं प्रिंस की तरह, तो ये वेलवेट अरेंजमेंट है। इट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। आप ये देखिए, एस्टिवेशन का मतलब है फ्लावर के पेटल्स थैलामस पर कैसे अटैच हैं, इस चीज को एस्टिवेशन कहा जाता है। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन है, सब अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। यानी ये जो पेटल का ग्रुप है जिसको हम कोरोला कहते हैं, तो कोरोला का कैसा अरेंजमेंट है, ये एस्टिवेशन कहा जाता है। और पहला प्रकार है दैट इज वेलवेट। सो इस तरीके का भी अरेंजमेंट हमको देखने में मिल जाता है। एग्जाम्पल्स आपको बता दिए जाएंगे कि सबके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। नाउ दिस इज वेलवेट टाइप, डिफरेंट फ्लावर इज एट डिफरेंट एंड डू नॉट, इट इज वैक्सिलरी। सो वैक्सिलरी में आप देख सकते हैं एक बड़ा पेटल है, वो दो छोटे को उसके अंदर इनकेस्ड है, और जो सबसे छोटे दो हैं वो जुड़े हुए हैं, इस तरीके से है। कुछ ट्विस्टेड होते हैं कि एक का हेड दूसरे के टेल पर ओवरलैप कर रहा है और एक ही पैटर्न पर कर रहा है, तो उसे ट्विस्टेड कहेंगे, लाइक इट इज ए ट्विस्टेड। So this is twisted kind of estivation, that is arrangement of petal over thalamus. It is again twisted. So by figure that is a kind of cut. You can see how the petals are arranged. Again it is clearly seen it is twisted. So when we laterally cut, then it comes out clearly that it is twisted. इट इज लेटरल, इट इज नॉट ट्रांसवर्सल, इट इज लेटरल कट, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसका क्या अरेंजमेंट है। अगेन हियर इट इज, हियर यू कैन सी देयर इज नो डेफिनिट अरेंजमेंट, सो सच काइंड ऑफ क्यूनशियल। सो क्यूनशियल मीन्स कोई डेफिनिट अरेंजमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एक्टिनोमार्फिक है, इसकी रेडियल सिमेट्री है, तो बाकी सिमेट्री तो भी हम देख सकते हैं कि कैसी है, जाइगोमार्फिक है या एक्टिनोमार्फिक है। नाउ देयर इज वन मोर दैट इज ब्रैक्टिएट। आप देख रहे हैं कि लास्ट में ब्रैक्ट है, फ्लावर के एंड में ब्रैक्ट है, जैसे स्टिप्यूल होता है लीफ के एंड में, एक्सिलरी बड के अलावा स्टिप्यूल होता है, वैसे यहाँ ब्रैक्ट है। तो फ्लावर ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, फ्लावर ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस भी हो सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स। उसमें कितने पेटल्स हैं उसके बेसिस पर ये इनका अरेंजमेंट। जैसे ये यहाँ पर पेंटामेरस है, तो फ्लावर में कितने पेटल हैं, ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, या पेंटामेरस हो सकता है। इट आल्सो डिटरमाइंस कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। हमने इनफ्लोरेसेंस देख लिया, हमने इसका एस्टिवेशन देख लिया, फ्लावर के पार्ट देख लिए। अब हमने ये भी देख लिया एस्टिवेशन में कि कोरोला किस तरीके से, पॉलीपेटलस कोरोला भी हो सकता है, बहुत सारे पेटल्स हैं तो पॉलीपेटलस कोरोला है। रोजेजियस भी होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए हों। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ये जरूरी नहीं है कि चार ही तरीके के एस्टिवेशन हो, इसके अलावा भी कई तरीके के एस्टिवेशन हो सकते हैं। अगर जुड़ गए हैं तो गेमोपेटलस है, और अगर अलग अलग हैं तो फिर सेपरेट हैं, वेलवेट हैं। स्टेमिनोड उसको कहते हैं कि ऐसा स्टेमन, अब हम स्टेमन पे आ गए हैं, जो स्टेराइल हो, जो जिसमें पॉलन ग्रेन्स ही ना हो, उसको स्टेमिनोड कहते हैं। नाउ अगर स्टेमन बिलो हैं तो इंट्रोस कहेंगे, और अगर स्टेमन मान लीजिए स्टिग्मा से ऊपर हैं तो एक्सट्रोस कहेंगे। हियर अगर सारे एंथर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको सिंजीनियस कहेंगे, एक साथ जुड़े हैं, और उसको मोनोएडल्फस मतलब एक ही सिंगल है, तो ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलीएडल्फस है, सब अलग अलग हैं, कोई किसी से जुड़ा नहीं है। तो स्टेमन के ये भी टाइप है, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। अलग अलग तरीके के स्टेमन हैं, सब जुड़े होंगे। अगर बहुत सारे, ये मोनोएडल्फस है,
तो एक सिंगल ब्रांच में यहाँ पर एक फिलामेंट में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि एंथर हैं, तो ये मोनोएडल्फस कहा जाएगा। फ्यूज्ड भी हैं तो भी मोनोएडल्फस कहा जाएगा। तो मोनोएडल्फस चाइना रोज में होता है, गुड़हल हिबिस्कस में होता है, ये सब में आप देखते हैं कि सिंगल होता है। नाउ if 2 long and 2 short stamen and then didynemus, and if 4 long and 2 short and tetradynemus, here it is monoadelphous, सारे जुड़े हुए हैं। अलग से एक जो जा रही है that is कैलिक्स, तो कैलिक्स के साथ साथ स्टेमन चल रहा है, वो मोनोएडल्फस है। ये भी मोनोएडल्फस है, जिस कैन बी क्लियरली सीन कि एक फिलामेंट में बहुत सारे एंथर हैं, तो ये मोनोएडल्फस है। अगेन इट इज ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें सारे पार्ट दिखाए गए हैं कि किस तरीके से प्लांट है। हियर मोनोएडल्फस है, और कभी कभी ये जो स्टेमन है वो पेटल से जुड़ जाता है, तब उसको एपीपेटलस कहते हैं। ये डाइएडल्फस है। डाइएडल्फस में 2 गुच्छे हैं, 2 ब्रांच है किसी फ्लावर में, तो ऐसे केस में डाइएडल्फस कहा जाएगा। और एक ही ग्रुप में अगर सारे निकले हुए हैं तो मोनोएडल्फस कहा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सेपल बहुत बड़ा दिखाया गया है, दैट इज पॉलीएडल्फस। सब सेपरेट सेपरेट हैं तो पॉलीएडल्फस इसे कहा जाएगा। नाउ देयर आर एंथर्स, सो एंथर्स अलग अलग जगह से डिसेंस करते हैं, यानी पॉलन ग्रेन गिराते हैं, तो डिसेंस का भी टाइप अलग अलग होता है। हियर दे आर सेपरेट, सो इट इज पॉलीएडल्फस। नाउ फ्लावर में ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो सीड बन जाता है बाद में, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ओवम है, वही सीड बनता है। तो ओव्यूल कैसे जुड़ा है उसके बेसिस पर हम प्लेसेंटेशन देखते हैं। यही बाद में सीड बन गया है तो वैसे ही ओव्यूल जुड़ा होगा। यहाँ हम देखते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ देखिए, जो मान लीजिए कि पेरीफेरी में जुड़ा है तो पेरीइटल है, अगर सेंटर में है तो फ्री सेंट्रल है, इसके चारों तरफ सेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक्शन है, तो सेक्शन होगा तो एक्साइल है। जैसे अलग अलग सेक्शन है तो उसको एक्साइल कहा जाएगा कि कंपार्टमेंट है। और अगर पेरीफेरी में ओव्यूल है तो पेरीइटल कहा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्यूकुम्बर में ऐसा होता है, पेरीइटल पेरीफेरी में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे पपीते में भी ऐसा होता है। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, जैसे शिमला मिर्च, तो उस केस में एक्साइल है और वहीं पर ये प्लेसेंटेशन है। तो अब हम देख रहे हैं कि फ्लावर में प्लेसेंटेशन यानी ओव्यूल के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे जुड़ा रहता है, ये एक्साइल। अलग अलग कंपार्टमेंट हैं जैसे, तो फिर उसको एक्साइल कहा जाएगा। और यहाँ पर भी एक्साइल है, कंपार्टमेंट होने पे एक्साइल कहा जाएगा। और फ्री कंपार्टमेंट है तो सेंट्रल या फ्री सेंट्रल कहा जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए कि देयर इज पेरीफेरी पर जुड़ा है तो पेरीइटल कहा जाएगा। जब पेरीफेरी किसी में सेंटर में है, जैसे लेडी फिंगर है तो एक्साइल कहा जाएगा। सब कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट हट जाए तो सेंट्रल कहा जाएगा। ये पेरीफेरी पे है पपीते में तो पेरीइटल कहा जाएगा। यही पहले ओव्यूल था, बाद में अब सीड बन गया है। तो इस तरीके से है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन, ये मार्जिनल, अगर मान लीजिए सूचर पर जहां 2 चीजें जुड़ी रहती हैं, तो अगर मान लीजिए ओवरी में भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ओवरी जुड़ी है, वहां पर अगर ओव्यूल निकला है तो उसको मार्जिनल कहा जाएगा। वही बाद में सीड बन जाएगा, क्योंकि जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है और उसके अंदर सीड्स रहते हैं। तो ये मटर एक ओवरी है, उसके अंदर मार्जिनल पोजीशन पर फ्रूट्स हैं, तो ये ओव्यूल का अरेंजमेंट है। वही ओवरी बन आगे बढ़कर फ्रूट बन जाती है। सो यही, और उसके अंदर सीड्स के अरेंजमेंट होते हैं। फ्रूट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो फ्रूट में अगर हम देखेंगे, देन इट कैन हैव, बाहर वाला एपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प और अंदर वाला एंडोकार्प होता है। एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। तो सीड क्या होता है, दैट इज ओवम, जो जाइगोट बनता है और सीड बन जाता है। बाकी जो ओवरी है वो फूल कर दूसरे पार्ट बनाती है। हियर इट इज फ्रूट में भी जो सीड है, सीड में भी मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट में 2 कोटिलिडन हैं जिसमें कि फ्यूचर फूड है, जबकि मोनोकॉट में क्या होता है कि उसमें एंडोस्पर्म रहता है, डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्रूट में आपको दिखाया जा रहा है एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एक्सोकार्प या एपिकार्प। दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रूट।
अगर शुरू में 2 लीफलेट निकलती हैं तो उसको डाइकोटिलीडन है। अगर पहली लीफ जो फर्स्ट लीफलेट है सिंगल निकलती है तो मोनोकॉट होगा, ये भी एक पहचान होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जहां पर डाइकोट में जुड़ते हैं दोनों सीड, तो वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसमें ऊपर की ओर होता है प्लम्यूल और नीचे होता है रेडिकल। प्लम्यूल के नीचे एपिकोटाइल और रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल होता है। तो इस तरीके से यहाँ मोनोकॉट सीड है और आप इसमें देखेंगे कि एंडोस्पर्म होता है, जबकि डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। जो फ्लोरल अरेंजमेंट है अगर उसे लेटरली कट किया जाए तो हम उसको कहते हैं कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर जैसे के दिया गया है तो के इज फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ऐसे दिया गया है। और ब्रैकेट लगा है जैसे किसी किसी में, तो इसका मतलब है वो जुड़ा हुआ है कोई भी चीज। तो हमारे 4 तरीके के फ्लोरल फार्मूला हैं। नाउ दैट इज ब्रेसिएसी, देन फेबेसी, सोलिनेसी एंड लिलिएसी। 4 तरीके के फ्लोरल फार्मूले होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है फेबिकेसी। उसमें जनरली 5 और एंड्रॉयशियम 10 होते हैं, बाकी कैलिक्स, सेपल्स ये सब 5 होते हैं, यानी पेटल सेपल 5 होते हैं। तो इस तरीके से होता है और सिंगल ओवरी होती है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सोलिनेसी आएगा, सबसे आगे बढ़ेंगे तो लिलिएसी आएगा। सोलिनेसी में सब कुछ 5 होता है। सोलिनेसी में सेपल 5, पेटल 5, इसके अलावा स्टेमन 5 और 2 ओवरी होती हैं, दोनों अलग अलग। तो सोलिनेसी तो सबसे नंबर 1 पे सबसे अच्छी जो फ्लावर है वो फेबिएसी कहा जाता है, फेबेसी। दूसरे नंबर पे सोलिनेसी, और जो लास्ट नंबर है जैसे फर्स्ट फेबिएसी, सेकंड सोलिनेसी और जो लास्ट है उसको लिलिएसी कहा जाता है। तो फेबिएसी फर्स्ट, इसमें 5 है सेपल्स, 5 है पेटल्स और 5 + 5 यानी 10 है स्टेमन और सिंगल है ओवरी। ये गाइनोशियम के आधार पर ये सब कहा जाता है। अगर सिंगल ओवरी है तो उसे फेबिएसी यानी फर्स्ट कहा जाता है। बाकी परसेंटेज ऊपर लिखा है, परसेंटेज का मतलब है कि जाइगोमॉर्फिक है, बीच से इसे कट किया जा सकता है और ये एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। और ब्रैकेट लगा है किसी चीज में तो ये मान लीजिए वो चीजें फ्यूज्ड हैं। कहीं कहीं ब्रैकेट लगा है तो मानो वो 5 फ्यूज हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो सेपरेट है। अगर स्टेमन 10 से ऊपर है तो इन्फिनिटी लिखा जाता है। तो हमने ये देख लिया फ्लोरल डायग्राम और ये सारी चीजें देख ली। नाउ इफ इट इज कट विद एरो दैट मींस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ फ्रूट्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। ब्रेसिकेसी एक अलग तरीके का डायग्राम है जिसमें ओवरी में कोई सिमेट्री नहीं पाई जा सकती है या फ्लोरल को किसी सिमेट्री एक्सिस पर नहीं तोड़ा जा सकता है। लिलिएसी का फेवरेट नंबर 3 है।